Yes. Just a minute. So my screen is now visible, I believe, right? I think so, right? Fine. Hello? Yes, sir, it is visible. Yeah. So see, as it is your 7th sem, you know that BP 701 T is having 4 classes, okay? And practicals are there, 1 practical for each group, okay? And the continuous evaluation is 25 marks. ये तो सब मालूम है. और NTERM is your 75 marks. Fine. Next, we will see. Yeah, so that is your syllabus. Instrumental method of analysis. What do you mean by analysis? Last, this is your as 4th year. You have studied in first year pharmaceutical analysis. पढ़े थे ना बेटा? Titration पढ़े थे और छोटा मोटा हाँ conductometric titration तरह तरह का titration पढ़े थे. And you supposed to do have a burette to do the titration to assay a drug. पढ़े थे ना बेटा? That is also one kind of analysis. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all know that what is that कि analysis में भी 2 types. Yes, जानते हो ना बेटा क्या क्या होता है? One is your yes Quantitative, sir. क्वांटिटेटिव. ये जानना क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट है सर. ओके 1 kg 1 ग्राम है या मिलीग्राम है माइक्रोग्राम है. ओके माइक्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं. म्यू साइन जानते हो ना बेटा म्यू. ओके ओके माइक्रोग्राम. Okay, milligram is mg. Okay, microgram is your 10 to the power minus 6, right? And milligram is 10 to the power minus 3. And nanogram is nano matlab nano mean 9. Okay, 10 pico matlab pg picogram 10 to the power minus 12. और एक होता है फेम्टोग्राम FEMTO फेम्टो 10 to the power minus 15. इतना तो याद रखना आप लोग. ओके तो मैंने बताया मिलीग्राम. ओके 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम बेटा 10 to the power 3 मिलीग्राम. राइट. ओके देन कम्स योर मिलीग्राम से माइक्रोग्राम -6. देन माइक्रो से नानो 10 to the minus 9. पिको इज 10 to the power minus 12. वेट फॉर मिनट. ओके यस समझे बेटा क्या बोला मैंने. ओके तो 2 तरह का वेट होता है. एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी 2 टाइप्स. देखो दिस इज योर 4th ईयर एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग for your job prospect, those who want production R&D. Okay, this is most important because this is the analytical part and this is the instrumental method of analysis because industry is totally depend on the instruments like NMR, mass, IR. If you know
Okay, companies are open for you. IIT, NIT, they supposed to advertise your what is that, scientific officer. What is that? Scientific officer. That is a government job. Okay, officer. For that you need a master degree. Okay, and with that computer certificate, if you do have a BCA or DCA computer application or PGDCA, understand, and MPharm with this course, and you do have experience of these machines, UV, fluorimetry, IR, NMR. If you know how to run this, no, you are a gem for them. They will pick you. आप अगर कोई एनालिटिकल डिपार्टमेंट में काम करोगे, so that is a very good experience for an industry. You will be a scientist in analytical department. Lot of good MNC company supposed to give. So this knowledge is most important. समझ गए क्या बोला? आपको तो मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाया था. Now I am teaching you the instrumental method of analysis. Try to understand this part also. This is a most important. Okay, and this, from this lot of question will come, near about 10 marks question you can expect in your GPAT, drug inspector, any competitive exam. मान लो कोई गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है, जैसे कि फार्मासिस्ट का, ओके, एम्स फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एनीवेयर, सो फ्रॉम दिस चैप्टर क्वेश्चन विल कम. फाइन, समझे बेटा क्या बोला मैंने? जानते हैं किसी Yes, को sir. इंटरेस्ट नहीं है, डज नॉट मैटर, बट नॉलेज तो चाहिए ना बेटा. जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए. हर कोई तो इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल, आई बिलीव देयर इज नो फॉरेनर इन योर ग्रुप, राइट? और कोई समझ नहीं सक रहा है हिंदी, बता दो, but then only I can talk in English. Everyone is comfortable in Hindi? Yes, sir. Or shall I tell in English? I don't have any problem. So see, so this is the analysis. Analysis two type. Qualitative mean is it okay? Quality कि हमने शर्ट देखा, ये अच्छा क्वालिटी है, बुरा क्वालिटी है. ऐसे ही कोई प्रोडक्ट का क्वालिटेटिव मीन ओनली आइडेंटिफिकेशन. गॉट माय पॉइंट? देख के पता लग जाएगा कि अच्छा चीज है या बुरा चीज. सो फॉर दैट रीजन सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट. व्हिच इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट? बी फार्म में पढ़े हो, बताओ मुझे. यूवी विजिबल, आईआर, टाइट्रेशन, और योर और एक पढ़े थे ना फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या होता था बेटा वो? Limit test. वेरी गुड, लिमिट टेस्ट. ओके, व्हिच इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट? कोई अगर पूछेगा, लिमिट टेस्ट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी and NMR, so that is limit test. Okay, limit test is a semi because it contains qualitative and quantitative analysis. Fine, these are your questions. Okay, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जो सब कुछ नॉलेज होता है वही बच्चा ही जीपेट क्लियर कर सकेगा. फाइन, देखो नाउ विल ये पढ़ के सीखोगे क्या? ये पढ़ना एक बार, स्कोप क्या है इसका, दैट दिस इज ए डील विद द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल. देखो हमने पढ़ा कि एक कंपनी में, देखो आप लैब में जब आओगे ना, व्हाटएवर द सिंथेसिस यू हैव परफॉर्म, आपने कितना सारा सिंथेसिस किया है ना, हाउ यू सपोज टू कैरेक्टराइज द सिंथेसिस? रिएक्शन बना या नहीं बना, कैसे कैरेक्टराइज करते हो? एक रिएक्शन को हमने लिया, 2 घंटा घुमा दिया, सब केमिकल लेके 2 घंटा घुमाया, उसके बाद क्या करते थे तुम? वर्कअप करके उसके बाद तुम मेल्टिंग पॉइंट देखते थे बेसिकली, राइट? यस और नो? देखते Yes, थे? sir. ओके, मगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तुम नहीं देखते थे. तुम सीधा 2 घंटा बिठाना था, 2 घंटा बिठा दिया, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट चेक किया. अगर ये मेल्टिंग पॉइंट आपका स्टैंडर्ड के साथ सही है, आप अगर एस्पिरिन बना रहे हो, एस्पिरिन का मान लो 158 है सेंटीग्रेड है, तो ये अगर 158 डिग्री हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेरा कंपाउंड एस्पिरिन है बोल के बताते थे या नहीं बताते थे? तो दिस इज योर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक. फाइन, मेल्टिंग पॉइंट. नाउ ऑनवर्ड सी these all the machines, instrument, UV, then IR, then your what is that, NMR भी है ना बेटा आपका यहाँ पे कहीं पे? मुझे नहीं दिखा. It has to be. कहाँ गया NMR रे? Anyone can show me NMR? NMR नहीं है आपका? सर दिख तो नहीं रहा सिलेबस में सर. मेरा आँख में भी नहीं दिख रहा है, होना चाहिए. ओके, हमने तो पढ़ा था बेटा NMR. चलो आगे जाके देखेंगे. हाँ, सो सी, आपने रिएक्शन बिठाया, रिएक्शन गया या नहीं गया, कितना
हुआ। तो टीएलसी प्लेट कभी बनाए हो बेटा आपने? हेलो, टीएलसी प्लेट कभी बनाए हो? हैव यू डन और नॉट टीएलसी प्लेट? यार जल्दी जल्दी, यस और नो। नहीं बनाया तो बता नो सर, दूंगा। नहीं बनाया। वो ओके, सर नहीं बनाया है सर। हाँ, तो टीएलसी जो होता है ना, वो क्या होता है ना, ये पार्ट तुम्हारा कवर करेगा, यूनिट 3। यूनिट 3 जो होता है ना आपका, ये वाला पार्ट कवर करेगा। हाँ देखो, जितना एप्लीकेशन है ना, जब जब आओगे ना लैब में सीख लेना, अगर जानते हो। ओके, बहुत ही एप्लीकेशन पार्ट है ये, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये टोटल आपको एक टीएलसी होता है यहाँ पे ना, टीएलसी थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी। ओके, क्रोमाटोग्राफी मतलब क्या ना, सेपरेशन। मान लो हमने जो यहाँ पे डाला था, कोई चीज, दो चीज मिलाया, ए एंड बी, और उसमें प्रोडक्ट बना सी। तो आपको लगता है कि हर चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? नहीं, उसके साथ इम्प्यूरिटी भी बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इम्प्यूरिटी के साथ क्या होगा? ये हर चीज कन्वर्ट नहीं होता, इसके साथ ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा बेटा? रहेगा ना। कोई चीज 100% ट्रांसफर नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है। तो आपका ये आरबी में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इम्प्यूरिटी भी है। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, ये आरबी से यहाँ पे एक स्पॉट लगा देंगे रिएक्शन का लेके, फिर इसका भी एक स्पॉट लगा देंगे यहाँ पे, फिर इसका भी एक स्पॉट लगा देंगे यहाँ पे, और हो गया। ये तीन चीज का हम स्पॉट लगा दे, क्योंकि इसका मालूम है, इसका भी मालूम है कि ये तो यही कंपाउंड है, ए है, ये बी है। अब जो नया सी बनेगा, तो मान लो ए बी, यहाँ पे ए बी हम जब सॉल्वेंट मूव करेंगे तो क्या होगा, ए इतना दूर आया, बी इतना दूर आया, और सी नीचे बैठा हुआ है मान लो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस प्लेस देयर इज नथिंग। मतलब क्या कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट कंज्यूम हो गया, कुछ भी बचा नहीं है, और सिर्फ सी बचा है। मतलब यहाँ पे कुछ नया चीज बना है, जरूर बना है। समझे क्या बोल रहा हूँ? मगर यहाँ पे कुछ नहीं, ये दोनों ऊपर उठ गया, बराबर का होना चाहिए। आओगे तो मैं दिखाऊंगा। तो क्रोमाटोग्राफी एक चीज होता है कि हम उसको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी में समझना पहले। आई अंडरस्टैंड यू डू हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी टर्म इनटू हिंदी टू इंग्लिश, आई बिलीव सो। पहले कोई भी चीज समझना हो तो अपना हिंदी में समझ जाना, राइट? उसके बाद आप आसानी से कन्वर्ट कर सकोगे। यू कैन राइट डाउन इन योर इंग्लिश वोकाबुलरी। ओके, व्हाट आई मीन्स, इट इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पहले आपको समझा कि क्रोमाटोग्राफी क्या होता है ना। क्रोमाटोग्राफी में कोई चीज का अगर मिक्सचर हो, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझे क्या बोला बेटा? अंडरस्टैंड? रिएक्शन जब लगाते हैं, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट रहता है, इंप्रूव्ड रहता है, हम ये क्रोमाटोग्राफी के टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्रोमाटोग्राफी देखो तरह तरह का है। अगर पेपर यूज करेंगे तो पेपर क्रोमाटोग्राफी, और सिलिका यूज करेंगे तो थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, ग्लास कॉलम यूज करेंगे तो कॉलम क्रोमाटोग्राफी। हमारा लैब में एचपीएलसी भी है ना, एक मशीन है, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, ये थोड़ा हाई पावर वाला है, ये भी चलाना सिखा देंगे, चिंता मत करना। ठीक है ना बेटा? ओके, तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, सॉरी क्रोमाटोग्राफी। ओके, इसको बोलते हैं क्रोमाटोग्राफी। केमिस्ट्री में मैंने जो पढ़ाया था, आपने रिएक्शन लगाया, अब देखा कि यहाँ पे कुछ भी रिएक्टेंट बचा नहीं। अगर बचता तो और 2 घंटा रिएक्शन या 1 घंटा हम ज्यादा लगाते। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट कुछ नया। तो आपको उतारना तब चाहिए। हाँ, आप एक बात बताओ, आप जब घर में मान लो आपको क्या चाहिए ना, चावल खाना है, चावल पका के खाना है, पका हुआ चावल खाते हो या कच्चा चावल पकाते हो? जब आप कच्चा चावल होता है तो हाथ में दबा के देखते हो या नहीं? कोई तो कुकिंग किया होगा आप में से, एनीवन हैज कुक्ड? बनाते हो खाना या नहीं बनाते हो भाई? यस सर, बनाते हैं। हाँ, तो खाना जब बनाते हो देखते हो या नहीं देखते हो कि खाना पका, चावल पका या नहीं? कि आप कच्चे भी चावल रहता है, पका भी रहता है। अगर कच्चा रहता है तो क्या करते हैं, चलो और थोड़ा टाइम उबालते हैं। उबालते हो या नहीं? आपने कैसा एनालिसिस किया ना, हाथ में दबा के। वैसे ही कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आप कैसा एनालिसिस करोगे? बता दिया आपको क्या होता है, दैट इज क्रोमाटोग्राफी। व्हाट माय पॉइंट बेटा? दैट इज द थिंग। क्रोमाटोग्राफी में सर हम एनालिसिस कर सकेंगे। दैट इज थोड़ा एक्सपेंस कम पड़ता है। नहीं तो क्या करते हैं ना टीचर, देखो यार कौन चला रहा है ये मशीन मशीन।
यस, अंडरस्टूड बेटा? हेलो? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, ये क्रोमाटोग्राफी होता है। बट आप एक भी चीज कर सकते हो कि आप यहाँ से एक सैंपल ले लोगे थोड़ा सा और उसको एनएमआर कर सकते हो, मास कर सकते हो, यूवी कर सकते हो, तब भी आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा। जैसे कि मान लो 3 बच्चे हैं, एक मान लो कौन है ना, मान लो मैं 3 स्पीसीज लूंगा, तरह तरह का चीज जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। किसको लूंगा मैं? मान लो मैंने आरोही को लिया, ओके, हाँ आरोही को लिया, चिराग रावत को लिया और नंदकिशोर को लिया। मान लो आरोही का वेट कितना होगा, इतना लंबा हो तो मतलब मान लो 45 से 50 किलो मान लो आरोही है, ओके। भारती मान लो 55 किलो है, ओके। आरोही इज 40 किलो, भारती इज 55 किलो एंड चिराग इज 60 किलो। हर आदमी का थोड़ा थोड़ा तो अलग वेट होता है या नहीं होता है? होता है ना, कि किसी किसी का तो एक ही होता है। चलो ठीक है, कोई कोई बंदा का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, मास भी सेम हो जाता है क्योंकि वेट थोड़ा सा वेरी कर सकेगा, मगर होता तो है, अलग तो होता ही है। तो वैसे ही हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अलग भी तो होता है ना, बेंजीन का अलग होता है, साइक्लोहेक्सेन का अलग होता है। तो आपको कोई उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो आप बता नहीं सकोगे, हाँ सर ये 72 है मतलब बेंजीन हो सकता है, बता सकोगे या नहीं बता सकोगे? सर ये यस सर। इसका एटॉमिक वेट 12 है मतलब सर ये कार्बन हो सकता है। हो सकता है, मैं एग्जैक्ट थोड़ी बता रहा हूं कि ये कार्बन है, हो सकता है। वैसे अरे ये तुम्हारा बैच में 40 किलो इसका वेट है, आरोही का 40 किलो वेट है, तो 40 किलो तुम्हारा बैच में किसका है? तो अरे आरोही का ही है, हो सकता है बोल सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो। जब तक हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखेंगे तब तक हम थोड़ी बोलेंगे कि ये आरोही है, नहीं। वैसे ही ना बेटा कि हम मॉलिक्यूलर, यहाँ पे तुम्हारा ना और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें ना कि मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया जाता है। ये जान लेना, तुम्हारा सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया है भाई, हमने मगर पढ़ा था। सर हमें भी पढ़ा दीजिए। सर इतना सारा तो है, मैं जानता हूँ इतना सारा है, क्या करोगे इस सब का? ये सब का देखना कहीं पे यूज नहीं होगा, जो सब जरूरत था ना वो तो निकाल फेंक दिया है सब। चलो ठीक है, हम तो पढ़ा देंगे, हमें क्या है, थोड़ा दूसरा भी नॉलेज दे देंगे, जिसको चाहिए ले लेना, ठीक है, कॉम्पिटेटिव के लिए। एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिसमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी तक मैं टॉपिक में नहीं आया हूं, तुमका सब एप्लीकेशन बता रहा हूं कि तुम्हें इंटरेस्ट लगे, ओके। कि मास में हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, याद रख लेना, कहीं पे लिख लो। और एक होता है एनएमआर। क्या होता है बेटा? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें हम क्या देखेंगे ना, अंदर का स्केलेटन देखेंगे। क्या देखेंगे? स्केलेटन, अंदर वाला चीज देखेंगे। मास में तो मास देख लिया कि C6H6 को क्या बोलते हैं सर ना, ये 72 है मतलब ये बेंजीन हो सकता है। अरे भैया इसमें किस तरह का कार्बन है और किस तरह का हाइड्रोजन है, which type of carbon, which type of carbon and which type of hydrogen is there, whether it is aliphatic, whether it is aromatic, समझे? whether it is unsaturated, whether it is saturated। देखो हाइड्रोजन, नीचे लिख रहा हूं, हाइड्रोजन OH भी हो सकता है, H के साथ हो सकता है, NH के साथ हो सकता है, CH के साथ हो सकता है, SH के साथ हो सकता है या नहीं? तो ये तो हर H तो हर जगह पे है, मगर इसका नेचर अलग होगा। जैसे कि रूममेट होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, देखना तुम लोग खुद ही फील किए होगे, देखना अगर 2 बच्चे रहते हो हाँ एक रूम पे, तो ये मान लो अच्छा बच्चा है और ये बुरा बच्चा है, ये नशेड़ा है, गंजेड़ा है, सब कुछ खाता है, एक रूम पे दोनों रहते हैं। ये भैया इसके साथ रहता है तो कभी कभार ये भी सुट्टा मार लेता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सही बात है। हाँ, मगर हाँ ये मान लो चला गया छोड़ के, अब एक अच्छा बच्चा आ गया उसके पास, हाँ रूममेट बन गया। ये भाई पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है। ये बच्चा क्या करेगा? ये उसको देख के उसको भी फॉलो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है, नहीं भी कर सकता करेगा है, सर। नहीं कर सकता है, Yes, नहीं sir, भी कर करेगा। सकता है, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मगर किसी का अच्छाई देख के ना आदमी बोलता है अरे यार ये उठ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, होता है दिल में, ये अपने ही आप आ जाता है, देखना आप, ओके। तो ये जो चीज है ना, ये ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन के साथ है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, सल्फर के साथ है हाइड्रोजन। तो हर चीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉम्स का अलग अलग है या नहीं? तो आप ये जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अच्छा और बुरा के साथ कंपेयर करना बेटा। ये हर चीज का इस सब का ना एक एक एनएमआर में पीक आता है। ओके, ये जो पीक आता है अलग अलग दिशा में दिखाता है, कहीं पे 6 पे आएगा, कहीं पे 5 पे आएगा, कहीं पे 2 पे आएगा, कहीं पे 3 पे आएगा, ऐसा होता है। एनएमआर का 0 से 12 तक आता है हाइड्रोजन एनएमआर का, ठीक है। तो ये बीच वाला जो होता है मान लो 0 से 12, तो 0 से 6 जो होता है, 0 से 3 दीज आर द एलिफेटिक, और इधर एरोमेटिक रीजन होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। आप अगर इधर 12 की ओर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और ये 0 का और में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। समझे? ये होता है आपका प्रोटॉन एनएमआर का वैल्यू। हम सिग्नल देख के बता देंगे कि अरे ये तो इतना है, ये तो इतना है, मतलब कितना है, 6 to 7 है, मतलब सर ये तो बेंजीन रिंग का कार्बन है, हाइड्रोजन है, बता दोगे। सर 0 to 2 है, मतलब सर ये तो मिथाइल में जो हाइड्रोजन होता है उसका है, CH2 का हाइड्रोजन है सर, CH का हाइड्रोजन है, ये सब बता दोगे आप। समझ में आया ना? थोड़ा बकवास कर रहा हूँ आपको, ये आपका सिलेबस में नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन वाइज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। हाँ, ये तुम्हारा एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, मगर तुम्हारा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा। ओके, एग्जाम के लिए तो बहुत दूर का बात है, छोड़ो, पहले नॉलेज लो। नॉलेज ही पैसा होता है, जान लेना। वो तो सर्टिफिकेट लो के क्या करोगे, वो भी पैसा कमाओगे। नॉलेज होगा ना, बहुत पैसा कमाओगे, पहले नॉलेज बढ़ाओ। ओके, समझ में आ गया? एनएमआर मास। और आपका सिलेबस में एक दिया है, क्या दिया है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है ना, और एक यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या है? हाँ, आईआर क्या है? आपने देखी है ना, फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज CHO aldehyde, this is ketone, okay, and this is OH, and double bond, triple bond, C triple bond N, okay। मगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 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 है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों क्या सेम है? सेम वैल्यू थोड़ी देंगे, नहीं देंगे। हाँ, कोई मेरे साथ रहता है, कोई उसके साथ रहता है, दोनों क्या सेम है? नहीं है। अंडरस्टैंड? कार्बन के साथ नाइट्रोजन रहा, कार्बन के साथ कार्बन रहा, तो द रिलेशनशिप इज डिफरेंट, तो वैल्यू वुड बी डिफरेंट। तो फंक्शनल ग्रुप का जो वैल्यू देता है वो होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस चीज में हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं वो होता है क्या? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस चीज में मास डिटरमाइन करते हैं कोई चीज का मॉलिक्यूलर वेट, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस चीज में कौन किस तरह का कार्बन है, किस तरह का हाइड्रोजन है वो डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलता है क्या ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ गए बेटा इतना तक? हेलो? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। अब देखो, अब तुम्हारा टॉपिक में हम घुसड़ेंगे। आरोही, आरोही कहाँ गई बेटा? देख लिया सब घुस गया कि मतलब सबको ऐड हो गया ना क्लास में? नहीं सर, 7 नहीं है सर अभी। हाँ, 7 बच्चे ऐड नहीं है सर। कौन कौन थोड़ा बताओगे मुझे प्लीज? सर रोहित कुमार। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, मैं सामने ही ऐड कर दूंगा ना, क्लास तो चलता रहेगा, भूल जाएंगे नहीं तो। रोहित कुमार। सर प्रेजेंट हूँ सर, रोहित धीमान। देखो रोहित कुमार है, चलो। सर रोहित कुमार। सर रोहित धीमान प्रेजेंट। प्रेजेंट, ओके। और कौन बताओ? रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित धीमान। सर सुमेरा। सर रोहित धीमान प्रेजेंट है, रोहित कुमार एब्सेंट है। बेटा माइक बंद करो अपना प्लीज, माइक बंद करो। सर सुमेरा। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट। और बताओ? शगुन सर, डेट नहीं है। शगुन नहीं है, शगुन अरोरा ना?
Yes, sir. हाँ चलो, सगुन हो गया। और कौन बताओ? हाँ, पवन। अरे यार सगुन को ना, सगुन क्लास में नहीं है इसीलिए ना। क्यों बताओ? सगुन ने पेमेंट किया है, इसका नाम इसीलिए नहीं है। समझे क्या बोला? और बताओ कौन? सुधांशु। सुधांशु। ना, वो भी पेमेंट नहीं किया अभी तक बेटा शायद। ओके, इसीलिए देयर नेम हैज नॉट कम। ओके फाइन, छोड़ो। और बताओ। सर ऋतिक। ऋतिक। ऋतिक यार, ऋतिक तो क्लास कहाँ आता है? वो कभी आता है आजकल? नहीं सर। हाँ, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐड करो। वो उसका वो भी पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए उसका ऐड नाम नहीं है मेरे पास। चलो बताओ। अनीश। अनीस भी पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए ना उसका नाम नहीं है। चलो। सर नुमान। हाँ, नोमान। नोमान भी नाम, नमन का नाम है, नोमान नहीं, इसीलिए नाम नहीं, उसका पैसा पेमेंट नहीं किया है। चलो छोड़ दो, लीव दैट। ओके, वो खुद ही आएंगे, नेक्स्ट क्लास तक पैसा पे कर देंगे, आ जाएंगे। चलो। सर रोहित कुमार। सर रोहित कुमार। रोहित कुमार। सर ना, वो भी नहीं दिया है, इसीलिए उसका नाम नहीं है बेटा मेरे पास। ओके चलो, उन लोग का स्ट्रिक्ट रूल है भैया। आप बताओ, क्या बता रहा था आर्ट्स सिलेबस में? चलो फाइन। एक मिनट रुको। यस सॉरी। हाँ चलो, तो नाउ विल कम्स टू आवर टॉपिक। थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया ना बेटा आप लोगों को, क्या सिलेबस में दिया है? हाँ तो, हाँ तो आपको आ गया कि आपका सिलेबस में ना दो तरह चीज पढ़ाया गया है यहाँ पे, दो तरह का। एक देखना ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और दूसरा क्या है बेटा? क्रोमाटोग्राफी है, और कुछ नहीं है। एक में सेपरेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन होता है, और इसमें क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हो क्रोमाटोग्राफी में। और ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप क्वालिटेटिव कर सकते हो, क्वांटिटेटिव कर सकते हो, दोनों चीज हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है बेटा? ओके फाइन। चलो अब हम टॉपिक में घुसेंगे। तो 7 मिनट बाकी है, फिर भी तो हो जाएगा शायद। चलो हाँ, पहले तो 2 मिनट के लिए बता देता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होता है ना बेटा? हाँ, इंटरैक्शन। व्हाट इज दैट? आपने सैंपल लिया, मान लो कोई भी चीज में लिया, बेसिकली हम क्यूबेट बोलते हैं इन साइंटिफिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्यूबेट बोला जाता है। आपने ये यहाँ पे सैंपल बनाया, पानी में डालो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालो, क्लियर सॉल्यूशन बनना चाहिए। हाँ,
और जब कोई भी रेडिएशन, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज दैट? लाइट इज द नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दिस इज व्हाट? सैंपल मीन व्हाट? मैटर, यस और नो? मैटर ही है ना। द इंटरैक्शन बिटवीन द electromagnetic radiation with the matter is known as what? Spectroscopy. The study of electromagnetic radiation with matter, okay, is known as spectroscopy. It is easy or difficult? Tell me. समझ में आया मैंने जो बोला बेटा? आ गया सर। आ गया। जैसे कि आपने गया एक्सरे लेने के लिए, क्या किया? खुद गया एक्सरे। मेरा अभी कोरोना सर, मेरा लॉन्ग्स कितना खराब हुआ है देखना चाहता हूं मैं तो गया था ये कुछ दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, अपना कोरोना का लॉन्ग्स में दिक्कत आ रहा है तो एक्सरे करवाया। सीधा जाके बोला सर दीवार में चिपक जाओ, और इधर से लाइट दिया, मार दिया मुझे। यहाँ पे लाइट आया, फोटो खींच लिया, चला गया, मालूम ही नहीं चला, हो गया, आ जाओ बोला। तो ये जो लाइट छोड़ा और ये हूं मैं क्या? सैंपल, मतलब मैटर, ओके। वेदर इट इज ए लिक्विड, वेदर इट इज सॉलिड, व्हाट इज the interaction of electromagnetic radiation with the sample, the study is known as spectroscopy. ये याद रखना जिंदगी भर। उसके बाद चले आओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हाँ, 2 मिनट में खत्म करते हैं। मैंने जितना बताया इतना याद रखना, ओके। नोट भी बनाते जाना, क्योंकि किताब में ना कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा, छटपटा जाओगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे जो किताब दिया है ना, मर जाओगे पढ़ोगे तो कभी भी नहीं कर सकोगे। समझ में आया? पढ़ के देखना जाके। मैं जो खाना खिला रहा हूँ इतना खाना खाना, अच्छे से रह जाना। मैं जो दूंगा उसमें पढ़ना, ठीक है? समझ सकोगे, नहीं तो मर जाओगे। बाकी तुम्हारा मर्जी, मैं तो कभी मना नहीं करूंगा। आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे से पढ़ सकोगे, ओके। फिर आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? बेसिकली लाइट। देखना किताब में कैसा कैसा दिया। रुको एक ये दिखा देते हैं। हाँ रुको, मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। मेरा तो लाइफ टाइम याद है, जिंदगी में जब मरूंगा ना तब भूलूंगा। मर भी गया तो अगले जन्म में भी याद होगा मुझे ये सीक्वेंस, समझे? ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं, तुम्हें याद रख लेना, याद रख लो ये फॉर्मूला, और उसका ट्रिक भी बता दूंगा तुम्हें। जिंदगी भर याद रखना, ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये क्या है? सीजी, कौन सा कंट्री का नेम, कौन सा स्टेट का नेम प्लेट है गाड़ी का? उत्तराखंड का यूके होता है। सीजी किस स्टेट का है बेटा, जल्दी बताओ। चंडीगढ़। चंडीगढ़। गुड तेरी का। तो सीएच क्या होता है पगला? छत्तीसगढ़। सॉरी। सीजी मतलब छत्तीसगढ़, याद रखना। ये कौन सा क्रिकेट प्लेयर को बोलते हैं? अरे ये कौन सा क्रिकेट प्लेयर का नाम है शॉर्ट फॉर्म? युवराज। फैंटास्टिक। तो याद आ गया ना, यूवी बोलते हैं। देखो YUVI होता है, मैंने XUVI कर दिया, चलेगा ना? और ये क्या, लड़का है या लड़की है? लड़का है मिस्टर सर। मिस्टर। तो ये आसान है, याद आ गया ना अभी। हाँ, तो ये सीक्वेंस को याद रखना। अब देखो नाम, C पर क्या होता है? कॉस्मिक रे, राइट। G पर क्या होता है? गामा रे। X पर क्या होता है? एक्स रे। U पर क्या होता है? UV। V फॉर विजिबल, I फॉर IR, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। कैसा है, समझे क्या बोला मैंने? अब देखो सीक्वेंस, अब देखो पूरा ये मैंने सीक्वेंस में लगाया उसे। अब देखो हाँ कि एनर्जी देखो, ये बताओ, कोई पूछेगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में है, आप बताओ एनर्जी क्या होता है? हाँ, मान लो ये क्या किया ना, आरोही ने एक पंच मारा, किसको मारा? मान लो किसको मारा? ये यशोधर को, ठीक है। आरोही ने एक पंच मारा यशोधर को, क्या होगा? अब आरोही ने क्या किया ना, प्रदीप को एक पंच मारा। अब बताओ क्या होगा प्रदीप का? कुछ होगा? उसको तो दुखेगा भी नहीं, वो तो पत्थर ही है। हाँ, जब यशोधर को मार दोगे तो क्या होगा? यशोधर वो बोलेगा, बुरा मत मानो, बोल रहा हूं एग्जाम्पल, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू टेल यू, ओके। जो एनर्जी होता है ना, मतलब क्या होता है? बल। मान लो अब क्या किया ना, आरोही ने मारा था दोनों को, अब आएगा रॉक। कौन आएगा? रॉक। अब भूर्सली आएगा, एक पंच दोनों को मारेगा, तो क्या होंगे? फ्लैट हो जाएंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया क्या बोला? एनर्जी क्या होता है। वैसे ही आप बताओ, रेडियो वेव
ज्यादा एनर्जी होगा या एक्सरे का एनर्जी ज्यादा है या गामा रे का एनर्जी, किसका सबसे ज्यादा होगा बताओ आप लोग। गामा का। गामा, गामा से और कौन स्ट्रॉन्ग है, कॉस्मिक रे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये कौन सा वे में है, दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझे, समझे बेटा या नहीं समझे मेरा बात। समझ गए सर। या फाइन। अब देखो, अब एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, E इक्वल टू एच म्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट सुने हो बेटा, कभी पढ़े तो थे शायद। हाँ यस सर, पढ़े थे। ये प्लैंक्स कांस्टेंट वाला इक्वेशन है, E इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी, ये म्यू क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। या। और वेव, ये जो है वेव नंबर क्या होता है, दिस इज वेव नंबर, प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेव नंबर, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज, सॉरी दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेव नंबर एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ। याद रख लो ये सीक्वेंस, जल्दी लिख लो मेरा। ओके, इतना ही याद रखना है आपको, कुछ नहीं, जो लिख दे रहा हूं। तो देखो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी बचा वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई भी पूछेगा, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। अंडरस्टैंड, समझ गया बेटा। बट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब उल्टा तुम करते रहो, जैसे करो। हो गया मेरा आज का कोटा तुम्हारे लिए, समझ गए, लिख लिए तो बेटा। हेलो, यस सर, समझ गए। हाँ बस लिख लो इसे, ठीक है। आज का कोटा हो गया, आज इतना ही, ठीक है ना। रुको मैं तुम्हारा अटेंडेंस भर लेता हूँ यार, चिल्ला के थक गया मैं। पढ़े ना, कुछ पढ़े, समझ में आया कुछ, कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हो, क्यों इंपोर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए। कि हम जैसे आइडेंटिटी देखते हैं वैसे ही किसी का वेट क्या है, कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड, इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी इज नीडेड। ओके, ये याद रखना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप। आज इतना खाओ आप लोग, समझे। आप तुम्हारा अटेंडेंस ले लेता हूँ, रुको 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, चलेगा ना। चलेगा सर। ओके, आकाश, प्रेजेंट सर। अभिनव, यस सर। मन, अमित, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अमित, प्रेजेंट सर। अनुष्का, Present, sir. आरोही, Sir. भारती, Present, sir. गुड, भारती। देन कम्स चिराग रावत, Yes, sir. मोहम्मद अर्श फिरोज, प्रेजेंट सर। चलो मुकुल पाल, सर अर्श प्रेजेंट। हाँ 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 बेटा, अर्श प्रेजेंट। अरे अर्श, तेरा पार्टी बाकी है। हाँ सर, बिल्कुल बाकी याद है सर मुझे। हाँ 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 हाँ। नंद किशोर, यस सर, प्रेजेंट। यार इसको थोड़ा स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।